Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS Pedagogy Part 13. So let us start. And before starting, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So today we will be doing experimentation and practical work. Okay, what do you mean by experimentation or practical work? Okay, and how should we utilize it? What are its importance? We'll be seeing that. So experimentation, practical work is crucial for the understanding of intricacies of environmental studies. Environmental studies के जितने भी important points है बहुत डेप्थ में समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल वर्क करवाना ही पड़ेगा बच्चों से. ठीक है. Experimentation plays a key role in the overall development of a child. बच्चा का overall development के लिए experiments बहुत important है because they will understand what is happening, what are you trying to explain, topic क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. experiment से बच्चे एकदम clearly समझ जाएंगे, right? So it will help in the overall development of the child. So experimentation is very necessary. Engaging in various practical work help enhance knowledge, ability and skill of child. So when you engage a child into practical work, it enhance their knowledge, उनकी knowledge ज्ञान बढ़ाता है, ability and skills को भी बढ़ाते हैं बच्चों के आपके practical works और experiments से. So experimentation or practical work is just like learning by doing. So हम लोग बोलते हैं ना कि learning by doing is the best way to teach children. तो उसी तरीके से experimentation or practical work is something that is learning by doing, that you are learning by doing. By this method, child develops an instant understanding of the concept in the long run, and by practical method, difficult tasks can be broken into parts and can be understood by grasping in depth of the topic. So, what do you understand by this is when you do experiments or practical work on any topic, the children can understand the topic easily because you're breaking the topic into different parts. Small parts में आप समझा रहे हैं टॉपिक को, इसलिए बच्चों को समझने में आसानी होगी. And the practical work always helps to understand the concept for a long run. लंबा समय तक आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, याद रखने के लिए प्रैक्टिकल वर्क या एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ज़्यादा मददगार रहती है. फॉर एग्जाम्पल अबकस टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट. छोटे बच्चों को जब हम मैथमेटिक्स समझाते हैं तो एबकस का यूज़ करते हैं ना, सो दैट वो लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन अच्छे से समझ जाए. वो लॉन्ग रन तक वो रहेगा, बच्चे याद करके रखेंगे कि एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, वो पीछे तक उनके काम आता है. तो एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट ओनली परफॉर्म्ड इन लैबोरेटरीज बट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड इन क्लासरूम्स, फील्ड्स एंड प्ले ग्राउंड्स, इन बोथ इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज. है ना. तो एक्सपेरिमेंट तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई लैबोरेटरी है बड़ा सा, उसमें ही सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है. आप क्लासरूम के अंदर भी एक्सपेरिमेंट्स करवा सकते हैं बच्चों से, फील्ड ट्रिप बाहर ले जाके भी एक्सपेरिमेंट्स या प्रोजेक्ट वर्क करवा सकते हो, प्रैक्टिकल्स करवा सकते हो, प्ले ग्राउंड में भी करवा सकते हो. सो इट कैन बी डन बोथ इनसाइड द क्लासरूम दैट इज इंडोर और आउटसाइड द क्लासरूम दैट इज फील्ड प्ले ग्राउंड, कहीं पर भी आप करवा सकते हो. Okay, so this is why experiment or practical work is very important. Now, let us understand what is the importance of practical and experimental work. It helps in the overall development of the child. चाइल्ड का हमने पहले ही बात कर लिया ना, ओवरऑल डेवलपमेंट. बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए उनको क्या ज़रूरत होती है, उनको टॉपिक समझने के सब्जेक्ट आसानी से समझने के लिए प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू टीच चाइल्ड यूनिटरी एक्सपेरिमेंट्स, it helps a lot. Teacher can divide the class into groups and then assign each group particular tasks to perform, and then among groups assign a particular task to be performed by students. By this method, students develop the spirit to work together and in unity and work towards to achieve the goal of the task assigned and strive to complete within the time frame. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे, राइट, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको अगर उनको यूनिटी में काम करवाना सिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप दो ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर देंगे, दोनों ग्रुप को अलग अलग टास्क देंगे, वो अपने अपने टास्क करेंगे, टाइम फ्रेम अपना इतना टाइम के अंदर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है आप बताएंगे. बच्चे अपने आप से, मतलब बच्चे अपने ग्रुप के अंदर
घुल मिल के वो काम करेंगे तो उनको यूनिटी में काम करना समझ में आएगा, और टाइम के अंदर काम खत्म करना ये बात भी उनको समझ में आएगी। बिकॉज एक थोड़ा सा कंपटीशन भी होगा ना, दो ग्रुप है तो पता नहीं वो ग्रुप जल्दी से खत्म कर लेगा, तो पहले हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए बच्चे थोड़ा कंपटीशन भी लेंगे, उसको पर्सनली भी लेंगे और बढ़िया से काम करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। तो इस वजह से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। आप उनको यूनिटी में काम करना सिखा रहे हैं, टाइम के अंदर पंक्चुअल बना रहे हैं, टाइम के अंदर काम करना सिखा रहे हैं, है ना। एंड टू यूज द पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में उनको पता चल रहा है, राइट, और डिफरेंट नॉलेज वो गेन कर रहे हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट इज helps the child to get exposure to real life experiences, है ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस का भी तो बच्चों को एक्सपोजर हो रहा है, मतलब जानकारी मिल रही है, बच्चे रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो भी समझ पा रहे, सीख पा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू टीच द स्टूडेंट अबाउट हेल्दी फूड, we can engage them into activities of sprouting pulses and grams, as sprouting is a natural process by which seeds germinate by keeping them into water for one night and then in the morning dry out water and then keeping pulses into clean clothes for 6 to 8 hours and then take out pulses afterwards. We will observe that small white tails will appear. This experiment helps develop curiosity among children and they will try this experiment in the future also. And in the same time, teachers should tell the student know about benefits of having sprouts and help in growth and development of the body, है ना। तो इसमें कितनी सुंदर सी एग्जाम्पल दी गई है कि मतलब टीचर बच्चे को हेल्दी फूड के बारे में अगर बताना चाहता है तो कैसे बताएंगे, बता तो देंगे लेकिन बच्चे वो काम करेंगे नहीं ना, बच्चों को तो जंक फूड यही सब पसंद रहता है। लेकिन हम अब टीचर है, हम बच्चों को हेल्दी फूड के बारे में बता रहे हैं, तो आप उनको एक्सपेरिमेंट क्या दे सकते हो, आप उनको स्प्राउटिंग के बारे में, पल्सेस को स्प्राउट करने के बारे में बता सकते हो। स्प्राउट मतलब क्या है, जो हम लोग पल्सेस को पानी में एक रात को भिगोते हैं, फिर दूसरी रात निकाल के कपड़े में बांध कर 3 4 5 या 8 घंटा तक उसको बांध के रखते हैं, फिर उसको खोलते तो उसके पल्सेस के नीचे से जो वाइट टेल जैसे आता है ना, स्प्राउट्स, तो उन 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 टाइप के टेल्स निकले हुए स्प्राउट्स को बच्चों को दिखाएंगे तो वो लोग और क्यूरियस होंगे ना, ये क्या हो गया। जब हम लोगों ने भिगोया था पल्सेस को तब तो नॉर्मल थे, सिंगल पीस में था, अब यह टेल कहाँ से आ गया। तो बच्चों को हम लोग इस तरीके से सिखा सकते हैं कि आप इसको खाओगे तो बहुत हेल्दी होगा, दिस इज हाउ दे जर्मिनेट, ऐसे निकलता है टेल, ऐसे फिर प्लांट बनेगा। वी कैन टीच देम डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, साइड बाय साइड उनको हेल्थ का बेनिफिट भी हम स्प्राउट्स के मदद से करवा सकते हैं, राइट। बच्चे खुद ब खुद स्प्राउट बनाएंगे, स्प्राउट्स कैसे होता है उन लोगों को दिखेगा, वो आगे फ्यूचर में भी तो यूज करेंगे जब उनको इनके ये सब चीज़ों की बेनिफिट रहेगी। सो दीज आर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो रियल लाइफ में तो हम लोग आज के डेट में हम लोग भी तो स्प्राउट्स बना के खाते ही ना हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया था, हमें पता है, इसीलिए हम लोग करते हैं। तो आगे जनरेशन को भी तो हमें ये सिखाना पड़ेगा, है ना। सो दीज आर फॉर जनरल लाइफ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में हम लोग उनको दिखा रहे हैं, बच्चों को अभी से एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि आगे जाकर आपको ये सब यूजफुल रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट शुड ऑलवेज बी वेरी यूजफुल, कि सामने आगे लाइफ में उनको मदद मिल सके, उससे कुछ सीख मिले और वो आगे यूज भी कर सके और यूटिलाइज भी कर सके, उस टाइप का एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए बच्चों के लिए। नाउ प्रैक्टिकल वर्क हेल्प द चिल्ड्रन टू गेट नो अबाउट द सराउंडिंग्स। अब ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि अपने आसपास में क्या हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ये सब बच्चों को पता चले, राइट। लाइक विजिट पुलिस स्टेशन, let the student know about if there was wrong happening there, where to report. It is just an example to make the child know about the role of the police in our life. Visit the Red Fort and India Gate and also let the child get exposure to places to visit in Delhi. अब एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है, एक दिल्ली का, आप किसी भी पार्ट में हो इंडिया के तो आपके वहाँ पे जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हो या टूरिस्ट प्लेस हो, वहाँ पे बच्चों को ले जाकर वहाँ की इंपॉर्टेंस बता सकते हो आप बच्चों को, है ना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिकल वर्क अगर आपको बच्चों को दिखाना है कि ऐसे आपके आसपास कैसे काम करता है, तो आप पुलिस स्टेशन लेके जाओगे, वहाँ पे दिखाओगे बच्चों को कि कैसे पुलिस काम करते हैं। जो गंदे काम करने वाले हो तो उनको पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, तो बच्चों को इस तरीके से पता चलेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, पुलिस का रोल क्या है सोसाइटी में, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली वर्क सीखेंगे क्या, अपने सराउंडिंग में ऐसे रहना चाहिए, हमें सोसाइटी में इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके रहना चाहिए। तो बच्चों को ऐसा सराउंडिंग भी हमें दिखाना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें करवाना चाहिए, ले जाके उस जगह पे बाकायदा दिखाना चाहिए हमें उन्हें,
राइट। सो इस तरीके से हम बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करवा सकते हैं, है ना। देन कम्स हेल्प्स इन डेवलपिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करवाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चे, कहीं जाके कुछ देख रहे सीख रहे, तो उनका ऑब्वियसली उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। उन्हें पता होगा ना, कल से सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए कि पुलिस स्टेशन में ही गए, बच्चों को पता है हम गलत काम करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देंगे। तो बच्चे उससे उनको पता है, इसलिए तो वो इतने कॉन्फिडेंस रहेंगे कि नहीं भाई हमें गलत काम नहीं करना, हमें आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, राइट। वैसे ही when they are asked to work in group, then they have no fear of getting failed. That is, group dance and group singing competition helps in development of the additional co-curricular activities, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में कैसे बढ़ेगा, और एक तो उनको प्रैक्टिकली अनुभव होगा कि भाई ऐसा कहीं भी हम जाएंगे तो क्या रूल्स फॉलो करना है, कैसे करना है, ये तो रहेगा ही। अब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना है बच्चों में, तो क्या करेंगे आप, ग्रुप में काम दीजिए उन्हें। सो द ग्रुप में बच्चा क्या रहेगा, उनको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम सब मिल के करेंगे तो वो काम गलत नहीं होगा। अकेला अगर कुछ भी परफॉर्मेंस करना हो या काम करना, बच्चा घबरा जाएगा। हम भी आज अगर अकेले कहीं जाना हो या कुछ परफॉर्मेंस देना, स्टेज प्रोग्राम करना, थोड़ा घबरा जाते हैं, है ना। लेकिन ग्रुप में सबको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, सब संभाल लेंगे एक दूसरे को। तो ग्रुप डांस हुआ या ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन हुआ, ऐसा को करिकुलर एक्टिविटीज भी बढ़ेगी बच्चों में, यूनिटी में काम करना भी आएगा, और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा कि नहीं हम प्रॉपरली काम करेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप का सवाल है, हमारे ग्रुप हमारी टीम का सवाल है, कि ये इसका इज्जत का सवाल है, इसलिए बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ वो और प्रॉपरली काम करेंगे, राइट। एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग अमॉन्ग चाइल्ड, ठीक है। लॉजिकली भी थिंक करना सिखाता है प्रैक्टिकल वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते ऐसे कर रहे हैं, हमें यूं ही करवाना है तो करवा दिया, ऐसा नहीं। बच्चों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, ओके। व्हेन अ स्टूडेंट टेक पार्ट इन अ प्ले competition where they perform singing, dancing and dialogue speaking etc, तो लॉजिकल कैसे हुआ, वो थिंक करते हैं उसी समय इंस्टेंट। किसी आपने भी बचपन में स्कूल में कभी स्कूल में पार्टिसिपेट तो किया ही होगा, कोई भी प्ले में नाटक में तो पार्टिसिपेट किया ही होगा। तो आप एकदम स्मूथली एक नाटक जा रहा है, आप लोग कर रहे हो, नाटक में अदाकारी कर रहे हो, लेकिन अचानक से प्रोग्राम के बीच में ही या स्टेज के ऊपर ही कुछ खराब हो जाता है। सपोजली सोच लीजिए आपके पास कोई टेबल में आप बैठ के बात कर रहे हैं, दो टेबल और चेयर में बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक से टेबल का पैर टूट गया और टेबल लड़खड़ा के गिर गया, राइट, वो नीचे जमीन पे आएगा। तो अब क्या करेंगे, आपको तो संभालना पड़ेगा ना उस सिचुएशन को। ऑडियंस के सामने तो आप हड़बड़ा के वहां पे क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। उस सिचुएशन को संभालने के लिए लॉजिकली आप उस समय क्या करोगे, उस सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ ना कुछ एक एक दो डायलॉग ऐसा बोल दोगे या कुछ कॉमेडी डायलॉग बोल दोगे जिससे वो सिचुएशन थोड़ा हैंडल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके का थिंकिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉजिकल थिंकिंग। इंस्टेंटली उसी समय आप उस सिचुएशन को संभाल लेंगे ना, उस चीज ऐसा भी डेवलपमेंट बच्चों में आ जाता है, ठीक है। बिकॉज दे आर वर्किंग इन ग्रुप, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज है, एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग, ग्रुप टीम का उनको पता है मैनेजमेंट कैसे करना है, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस उनको इतना ज़्यादा है कि भाई एक दूसरे को हम लोग को संभाल के चलना है, हमें ये काम परफेक्टली करना है। तो इस तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट, इस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क। तो टीचर्स को एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, ये देख लेते हैं। करवाना तो है, ये तो हमें पता है, अब समझ में आ गया है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एडवांटेजेस क्या है इन सब चीज़ों का, हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप द सराउंडिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब इन सब में ना आप अपने सोसाइटी में या कल्चर में, फैमिली, फ्रेंड्स में, सब में आप क्या करते हो, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, कॉन्फिडेंस आता है उनको, इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप अपने सराउंडिंग के साथ बिल्ड करने में उनका एडवांटेज रहता है। बिकॉज वो लोग, उनको पता है ना, हम अगर फैमिली में भी सारी पूरी फैमिली मिलके कोई काम करेंगे तो टीम वर्क होगा एंड टीम वर्क ऑलवेज परफेक्ट होगा। ये कॉन्फिडेंस रहेगा बच्चों में, बिकॉज ये उन लोग स्कूल से ही सीख के आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल वर्क्स में, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे गेम में हो, कोई फुटबॉल का क्रिकेट का गेम हो, तो वो देख रहे हैं ना, टीम वर्क हमेशा काम आता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने में काम आता है। तो ये सब चीज बिल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। हेल्प इन द जनरेशन ऑफ स्पिरिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो जनरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, राइट। एंड
कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाता है बच्चों में, बिकॉज वो एक दूसरे को, अब सपोज कोई ग्रुप में आप काम करवा रहे हैं बच्चों से, तो कोई बच्चा गलत कर रहा है तो सामने एक दूसरा बच्चा उसको समझा रहा है ना, भाई तुम ऐसे गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं सही ढंग से करना चाहिए। और बच्चा कोई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक दूसरे से डिस्कस करके वो समझ लेते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल, जो अपने में कुछ कमी हो या हमारे में कोई प्लस पॉइंट हो तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे सामने वाले से तो पूछ सकते हैं, हड़बड़ाते नहीं, घबराते नहीं है ना। तो ये सब चीज़ क्या करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, ये सब कॉन्फिडेंस को, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए क्या कहा गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बोला गया है। ठीक है, helps in the clarity of the subject taught throughout experimentation method। तो जो भी आप टॉपिक में आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, उस टॉपिक को तो बच्चे क्लियरली समझ जाएंगे ना, एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि अच्छा भाई इसको ऐसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पी का, मटर का दाना लो, उसका एक्सपेरिमेंट करो और बच्चों को दिखाओ कि भाई उसको पानी में रखने के बाद नीचे से जो रूट का सिस्टम का निकलेगा और ऊपर से जो स्टेम सिस्टम निकलेगा, बच्चों के सामने प्रैक्टिकली आप करके दिखाएंगे, कई दिन तक लगातार उन लोगों को प्रोसेस दिखाएंगे, तो बच्चों को हमेशा के लिए याद रह जाएगा ना कि एक सीड के अंदर से एक प्लांट ग्रो करता है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग शूट सिस्टम बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को रूट सिस्टम बोलते हैं। तो बच्चा कभी भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को एकदम क्लियर करवा देते हैं, राइट। सो इसलिए यहाँ कहा गया है क्लियरिटी ऑफ सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ा रहे हो, टॉपिक जो भी पढ़ा रहे हो, उसको क्लियर कर देता है एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। Now helps in building knowledge pool as practical work is performed for each topic, that is shapes can be taught through bringing materials from outside and then filling them in an object like sand and cement, fill in a cone and let the students know about the area, perimeter, concepts, etc. राइट। सो आप अगर नॉलेज प्रैक्टिकली देना चाहते हैं तो आप शेप्स के बारे में बच्चों को सिखाना है, तो आप डिफरेंट शेप्स का कुछ चीज़ ले आइए, खाली डब्बा उब्बा ले आइए, भर दीजिए उसको, बच्चों को सिखाइए कि भाई ये स्क्वेयर शेप है या ये कोन में है, उसमें मट्टी भर दीजिए, या पानी का कोई शेप नहीं होता, जो भी कंटेनर में आप डालेंगे उसी का शेप ले लेता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को प्रैक्टिकली समझाएंगे, बच्चे समझ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, कोई भी टॉपिक, हर टॉपिक में आप बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकते हो, दिखा के, करवा के उनसे समझा सकते हो। इसीलिए एडवांटेज है ये एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क। क्या चीज़ के लिए एडवांटेज है, आपका टॉपिक जो आप बच्चों को समझाना चाह रहे हो उसको क्लियरली उनको समझ में आ जाए, इसका एडवांटेज है, राइट। नाउ हेल्प्स इन द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जैसे इस सब चीज़ हमें क्या बता रहे हैं, बच्चों का ओवरऑल डेवलप करवा रहा है, क्वालिटी में भी एंड क्वांटिटी में भी बच्चों का डेवलपमेंट करवा रहा है। ओके, now principles of experimentation and practical work। now what are the principles of experimentation and practical work? प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क है ना, वो टीम वर्क सीखते हैं, टीम में काम करना सीखते हैं। क्वालिटी वर्क, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी, मतलब एकदम परफेक्ट काम करना है, बढ़िया काम करना है, ये चीज बच्चे सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मतलब जो भी काम करेंगे बहुत इफेक्टिव होना चाहिए और बहुत परफेक्टली होना चाहिए, एंड ऑन द टाइम फ्रेम, बहुत टाइम लिमिट के अंदर, जितना टाइम दिया गया उसके अंदर होना चाहिए, राइट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट में ये काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज है ना, तो जो भी वर्क रिलेटेड आप एक्टिविटीज दे रहे हैं उसको बच्चे आराम से करेंगे। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल्स के। ये आपके क्वेश्चन में आते हैं, सीटेट के क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स, इसलिए मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, सो दैट कोई भी एक दो पॉइंट भी आपका वहां पे ऑप्शंस में रहेगा तो आराम से क्लिक करोगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज insights into experimentation or practical work। हम लोग देखते हैं इसके अंदर में क्या होता है। Experiment refers to performing activities in an orderly manner, particularly to achieve in future. Experiment without is unfruitful. Proper consideration should be made while performing experiment, either it is inside or outside the laboratory। मतलब इसमें क्या कहा गया है, एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, एक्सपेरिमेंट हमें ऑर्डरली मैन में एक पर्टिकुलर टारगेट या एक पर्टिकुलर चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो एक लैब के अंदर, लैबोरेटरी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म बाय ईदर टीचर और स्टूडेंट कीपिंग इन व्यू द गोल टू बी अचीव। एक्सपेरिमेंट या तो टीचर करके दिखा दे आपको, है ना, कि ऐसे ऐसे करना है, या फिर टीचर स्टूडेंट मिलके करे, या स्टूडेंट से करवाए टीचर। ठीक है, लेकिन
वो गोल अचीव होना चाहिए कि जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए. Experiment or practical work has been promoted by many educationists in the past. That is, playway method by Froebel. Now we'll understand the relationship of playway method with experiments. मतलब इसमें क्या बोला गया है, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वर्क प्रमोट करता है एजुकेशनिस्ट का. जो पहले पहले एजुकेशनिस्ट बोलते थे ना कि प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाओ. प्ले वे मेथड मतलब फोबल एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले ये हमें ज्ञान दिया था कि बच्चों को सिखाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्ले वे मेथड से उन्हें सिखाया जाए. प्ले वे मेथड मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखा देना. राइट, बच्चों को खेल खेल में सिखा देना. आजकल से मॉन्टेसरी स्कूल्स में बच्चों को शेप सिखाने के लिए एक बड़ा सा फ्रेम होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हॉलो स्पेस होते हैं, खाली खाने जैसे बना रहता है डिफरेंट शेप्स का, और वही शेप्स के क्यूब्स जैसे बना के टुकड़ा बना के रखा हुआ रहता है. उसको पार्ट्स अपने अपने शेप के खाने में डालना होता है. तो ऐसे बच्चे खेल खेल में क्या सीख जाते हैं, बच्चे खेल खेल में ही शेप करना, शेप सीख जाते हैं, या कलर का नाम सीख जाते हैं, है ना. खेलते खेलते बच्चे सीख जाते हैं. तो जो खेल खेल में सीख जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते करते बच्चे सीखते हैं. एक ही बार में तो बच्चे नहीं आएगा ना, कौन सा शेप कहाँ डालना है, बच्चे को आएगा नहीं. वो तो करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते बच्चे कभी गलत खाने में डालेंगे, फिर कोई सा सही खाना में डाल देंगे. राइट, कोई सर्कल वाला में स्क्वायर को डाल रहा होगा तो स्क्वायर में सर्कल को घुसा रहा होगा. तो ऐसे तो बच्चे करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा सर्कल को सर्कल में ही डालना है, स्क्वायर को स्क्वायर में डालना है. तो इस तरीके से खेल खेल में जब बच्चा सीख जाता है ना, उस मेथड को क्या बोलेंगे हम लोग, प्ले वे मेथड बोलेंगे. और प्ले वे मेथड को किसका है, किसने हमें दिया है, वो है Froebel, okay, the more famous educationist. Now next is playway method is based on experiment based learning. It generates क्रिएटिव होता है, बिकॉज प्लेवे मेथड में क्या होता है, प्लेवे मेथड में बच्चा एक्सपेरिमेंट कर करके, जैसे मैंने बोला ना अभी कि डिफरेंट, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का बताना हो या कलर का बताना हो, तो बच्चों को हम लोग वो सामने ला के देते हैं. तो बच्चे क्या करेंगे, पहले तो उनको पता ही नहीं रहता ना, फिर हम एक बार करके दिखा देंगे. अगर बच्चों को टीचर्स बता देंगे कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, तो बच्चे वो करते करते अपने सीख जाएंगे. तो एक्सपेरिमेंट ही तो करेंगे ना बच्चे की, डिफरेंट पहले गलतियां करेंगे, फिर उसके बाद सही तरीके से करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग है प्ले में भी, ओके, एक तरीके से. और क्रिएटिविटी, बच्चों का क्रिएटिविटी, बच्चे नए नए तरीके से खेलने सीख जाते, खेल खेल में सीख जाते, क्रिएटिव रहते, बहुत क्रिएटिव रहते हैं बच्चे. सो प्लेवे मेथड इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग. इट जनरेट्स क्रिएटिव आइडिया अमंग स्टूडेंट्स. राइट, तो बहुत क्रिएटिव होते बच्चे, बहुत छोटे बच्चे तो और ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, बहुत नए नए तरीके से वो लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं. तो प्लेवे मेथड कैसे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट learning. Okay, playway method relates experiments with life oriented objects as it considers school as a second home to the child. तो क्योंकि प्लेवे मेथड इसलिए बच्चों को प्ले खेल खेल में सिखाना पड़ता है, क्योंकि घर में बच्चे खेलते रहते हैं, है ना. हमें हम बच्चों को घर में खेल खेल में ही तो खाना खिलाना है, या ड्रेस चेंज करवाना है, या कुछ भी हम लोग बच्चों से करवाते हैं तो खेल खेल में करवाते हैं. तो वैसे ही जब घर में बच्चे वैसे करते हैं, तो स्कूल भी तो बच्चों के लिए सेकंड घर है, सेकेंड होम आफ्टर होम है. हम लोग से स्कूल इज अ होम आफ्टर होम बोलते हैं बच्चों के लिए. राइट, तो वहाँ पे भी हमें यही मेथड का यूज़ करना पड़ेगा. बच्चों के डांट के, उनको पनिश करके कुछ नहीं सिखा पाएंगे हम लोग. खेल खेल के, हंसी मजाक में आप सिखाओगे, बहुत जल्दी बच्चे सीख जाएंगे. राइट, इसीलिए प्ले वे मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हम जो रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसी तरीके से हमें स्कूल में भी बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए सिखाना पड़ेगा उन्हें खेल खेल में. As playway method suggests, the need of the children can be fulfilled and increased by practical work. जो भी बच्चों का नीड्स है या कुछ भी ज़रूरत है, वो हम बच्चों को सिखाने के लिए क्या करेंगे, खेल खेल में बच्चों से सिखा देंगे, है ना. और उनका नीड्स का भी पता चल जाएगा, बच्चे किस चीज़ में अच्छे हैं वो भी हमें पता चलेगा, और किस चीज़ में उनको और ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है वो भी हमें पता चल जाएगी, है ना, खेल में. प्रैक्टिकल वर्क हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द टीचर, है ना. अगर आप कोई काम बच्चों से खेल खेल में करवा रहे हो, तो बच्चे तो आपकी बात मानेंगे ना, आप जो बोल रहे हो वो सुनेंगे ना. आप उनसे हंस के बात कर रहे हो, खेल के बात कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हो, मस्ती करवा रहे हो उनको, तो क्या होगा, बच्चों को ये लगेगा कि नहीं, अरे ये तो हमारे दोस्त जैसे हैं, हम तो इनसे बात कर सकते हैं. तो बच्चों का जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप रहता है ना, एक डर का, या एक मतलब बच्चों को डर रहता है, पता नहीं क्या होगा, हमें पनिश करेंगे या क्या करेंगे, तो वो गैप थोड़ा खत्म हो जाता है. इस वजह से हमें प्रैक्टिकल वर्क बच्चों को
करवाना पड़ेगा और आराम से करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल वर्क क्रिएट्स अ हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट। सो मैंने बोला ना, हंसी मजाक में, खेल खेल में आप बच्चों को सिखाएंगे तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होगा, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा क्लासरूम का, राइट। प्रैक्टिकल वर्क हेल्प्स टू एनहांस द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड। जैसे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, खुद ब खुद कर रहे हैं, तो बच्चा नेचुरली वो सीखेगा ना कि कैसे किया जाता है, वो टॉपिक उनके लिए क्लियर रहेगा, इसीलिए वो मेमोरी भी बच्चों का, मेमोरी पावर भी बढ़ता है बच्चों का because of practical work. Okay, now practical work helps to enhance the memory of the child, double हो गया है, and practical work provides opportunity to all children to participate in and projects their innate abilities and talent. अब क्या होता है, प्रैक्टिकल वर्क जो आप करवाते हो ना, तो हर एक बच्चा उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा, हर एक बच्चा इन्वॉल्व रहेगा क्लास का, और उसमें क्या होता है, वो अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो काम करेगा। तो इट्स लाइक पार्टिसिपेशन। मतलब आप अगर क्वेश्चन आंसर्स राउंड के करेंगे, तो किसी एक को पूछेंगे, जो जान रहा बच्चा वो तो आराम से, जो थोड़ा स्मार्ट बच्चा वो तो आराम से आपको आंसर कर देगा, बाकी जो थोड़ा डल बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है प्रैक्टिकल में, क्या होता है, सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट बच्चे हो या थोड़ा सा डल बच्चा हो, लेकिन सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन भी सारे बच्चों का होता है, और वो अपने अपने लेवल के हिसाब से वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट भी करेंगे कि मतलब कैसे बच्चे वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि बच्चा कौन सा सही है, कौन सा थोड़ा वीक है, कौन से एस्पेक्ट में आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आएंगे, उसके अंदर भी आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों का पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन नहीं है, राइट। सो अब हमें रोल ऑफ द टीचर, टीचर का क्या रोल है एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। टीचर का ही तो रोल है उसमें, टीचर ही तो बताएगा क्या करना है, राइट। सो हम देख लेते हैं कि टीचर का क्या रोल है। द रोल ऑफ द टीचर प्लेज अ मेजर रोल टू मेक एक्सपेरिमेंटेशन अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप बच्चों से करवाएंगे तो टीचर का मेजर रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही को तो पता होगा कि आप क्या प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं बच्चों से, क्या एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहे हैं, आपको पता रहेगा, आपका प्रोजेक्ट है वो, आपका एक्सपेरिमेंट है, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे। द टीचर हैज़ टू प्लान द इनिशियल स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल वर्क कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपको पहले से ही प्लान करके रखना पड़ेगा कि मैं ऐसे करवाऊंगा एक्सपेरिमेंट, इन बच्चों के लिए थोड़ा वीक बच्चों के लिए ऐसे होगा, थोड़ा स्मार्टर बच्चों के लिए थोड़ा टफ तरीके से होगा। तो ये सब चीज़ आप पहले से ही पूरा एकदम प्लान करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। टू generate interest of the children so that children also contribute religiously into experiments and help in making it successful। तो बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को भी ध्यान में रख के आपको एक्सपेरिमेंट प्लान करना पड़ेगा, सो दैट बच्चे उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें और आपका जो जो ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला प्लान है वो सक्सेसफुल रहे। तो आपको बच्चों का नीड को, बच्चों के इंटरेस्ट को, बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट वर्क आपको प्लान करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। द टीचर शुड यूज प्रॉपर मेजर्स टू फुलफिल द नीड ऑफ एवरी चाइल्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इन द क्लासरूम। जैसे मैंने पहले ही बोला ना कि कोई बच्चा स्मार्ट होता है, कोई बच्चा थोड़ा डल होता है, तो थोड़ा स्मार्ट बच्चों को आप थोड़ा बहुत उनको आउटलाइन भी दे दोगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा डल बच्चा जो होता है उसको तो पूरी तरीके से आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्या पता आपको बार बार एक ही चीज़ बताना पड़े। तो हर बच्चे के नीड के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, सो दैट पूरी क्लासरूम आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपका एक्सपेरिमेंट के अंदर अपना फुल पार्टिसिपेशन दे सके। Okay, the teacher should itself have a vast knowledge of the subject on which practical or experiment is to be performed। तो आप जो भी परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं बच्चों से, जो भी एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं, या जो भी प्रैक्टिकल वर्क है, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी है, ऑडिटरी है, जो भी आप करवाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, टीचर होने के नाते आपको 100% ज्ञान होना पड़ेगा उस चीज़ का, आपको बहुत नॉलेज होना पड़ेगा आप जिस चीज़ का एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करवा रहे हो, ठीक है। बिकॉज यू आर अ टीचर, यू शुड नो एवरीथिंग, आपको हर चीज़ उस टॉपिक के अंदर आना चाहिए, हर पॉसिबिलिटीज़ एंड हर बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से सोच समझ के आपको प्रैक्टिकल वर्क बनाना पड़ेगा। The teacher should be familiar with the tools
एंड टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स टू बी यूज इन द एक्सपेरिमेंट। अब आप एक साइंस के टीचर हो, आपको लैबोरेटरी में काम करना है, आपको बीकर के बारे में नहीं पता, आपको एसिड्स कौन से रिएक्ट हो जाएंगे इसके बारे में नहीं पता, तो आप कैसे एक्सपेरिमेंट कराओगे? तो इसीलिए आपको हर चीज़ जो टूल्स एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में, अलॉन्ग विद ऑल द इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेशन करवा सकेंगे। ठीक है, द टीचर शुड प्ले एन एक्टिव रोल at all stages of experiments and should interact with the students to maintain the interest in and out द एक्सपेरिमेंट। तो टीचर बहुत एक्टिव, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठा बच्चे लोग अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हर स्टेज में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो अलग अलग स्टेज रहता है ना, तो हर स्टेज में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा बच्चा कौन से स्टेज में पहुंचा और कौन सा स्टेज में क्या कर रहा है, ये हर चीज़ में। और बच्चों से बात करते रहना पड़ेगा, इंटरेक्ट करते रहना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, सो दैट आप अगर आप बात करते रहोगे, हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते रहोगे, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है सब्जेक्ट के अंदर, वो जो कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो भी करवा रहे हो आप, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनको करने का मन होगा, उत्सुकता होगी, तो आपको बार बार उनके साथ जाके इंटरेक्शन करते रहना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, सो दीज आर द रोल ऑफ द टीचर, आपको ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। यही है आपका एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क के बारे में जो ईवीएस के अंदर आपको क्वेश्चंस आएंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक and share my video, and don't forget to subscribe Dive to Learn. Thank you.